A1, A2 dot 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 are in AP. If A8 is to A5 equal to 3 is to 2, then A17 is to A23 is. Option is 1 is to 2, 3 is to 4, 4 is to 11 and 8 is to 11. तो यहाँ पे जो टर्म्स दिए गए हैं वो है हमारे AP में. सो A1, A2 dot 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 are in AP. तो nth term of an AP is given by an equals to a plus n minus 1 into d. तो अभी हमें रेशियो ऑफ 8th टर्म इज टू 5th टर्म दिया गया है. तो a8 is equals to a plus n minus 1. So 8 minus 1 into d, that is 7d. और a5 is equals to a plus 4d. a8 by a5 is equals to 3 by 2. So a8 means a plus 7d by a plus 4d is equals to 3 by 2. So cross multiply कर लेते हैं. Twice a plus 14d is equals to 3a plus 12d. So this implies twice d is equals to a. d is equals to a by 2. Okay. So we can write this as d by 1 is equals to a by 2 equals to k. Say k not equal to 0. So this implies d equals to k and a equals to 2k. A17 by A23 को हम लिख सकते हैं a plus 16d by a plus 22d. Okay. बिकॉज फॉर्मूला क्या हमारा nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो 17 माइनस 1 हो जाएगा 16 और 23 माइनस 1 इज 22. सो a का वैल्यू हमें मिला 2k. सो 2k प्लस d का वैल्यू k. तो 16k डिवाइडेड बाय 2k प्लस 22k. सो दिस इज इक्वल्स टू 18k बाय 24k. k कैंसल्ड. तो 6 से अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं हमें मिलता है 3 by 4. दैट इज A17 is to, if x greater than 1, y greater than 1, z greater than 1 are in GP, then 1 by 1 plus log x, 1 by 1 plus log y, 1 by 1 plus log z are in. Options say AP, GP, HP and none of this. So given x, y, z are in GP. Since x, y, z are in GP, therefore second term by first term is equals to third term by second term. तो इसे हम लिख सकते हैं y square equals to xz. अभी हम log both side ले लेंगे तो log of y square equals to log of xz. So this implies 2 log y is equals to, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं log x प्लस log ऑफ z. अभी हम 2 बोथ साइड ऐड कर देंगे तो 2 प्लस 2 log ऑफ y इक्वल्स टू 1 प्लस log ऑफ x प्लस 1 प्लस log ऑफ z. So this implies 2 1 plus log of y is equals to 1 plus log of x प्लस 1 प्लस log ऑफ z. नाउ ये कंडीशन कब होगा? व्हेन 1 प्लस log x, 1 प्लस log y and 1 प्लस log z. Since 1 plus log x, 1 plus log y, 1 plus log z are in AP, therefore 1 by 1 plus log of x, 1 by 1 plus log of y and 1 by 1 plus log of z are in HP because reciprocal of AP is HP. So the correct option is C. The angle between the lines 2x equals to 3y equals to minus z and 6x equals to minus y equals to minus 4z is. Options है 45, 30, 0 and 90. तो हम पहले इन लाइंस का डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे. तो 2x इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू माइनस z. तो हम इसे 6 से डिवाइड करते हैं बिकॉज ये हमारे कोफिशिएंट फ्री हो जाएंगे. तो x बाय
3 इक्वल्स टू y बाय 2 इक्वल्स टू माइनस जेड बाय 6। तो यहाँ से हमें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन मिल गया। तो यहाँ पे a1 इक्वल्स टू 3, b1 इक्वल्स टू 2 एंड c1 इक्वल्स टू माइनस 6। हम इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो 6x इक्वल्स टू माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4z। अगर हम इसे 12 से डिवाइड करते हैं तो ये टर्म्स जो है वो कोफिशिएंट फ्री हो जाएंगे। तो x बाई 2 इक्वल्स टू माइनस वाई बाई 12 इक्वल्स टू माइनस z बाय 3। सो a2 इक्वल्स टू 2, b2 इक्वल्स टू माइनस 12 एंड c2 इक्वल्स टू माइनस 3। अभी हमें निकालना है एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। सो we will use this formula cos of theta equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by root over a1 square plus b1 square plus c1 square root over a2 square plus b2 square plus c2 square। so ये फॉर्मूला हम यूज करके एंगल निकालेंगे। 3 into 2 plus 2 into minus 12 plus minus 6 into minus 3 all divided by root over 3 square plus 2 square plus minus 6 square root over 2 square plus minus 12 square plus minus 3 square। So this is equals to 6 minus 24 plus 18 divided by root over 49 and root over 57. Okay, so this equals to 24 minus 24 by root over 49 into root over 157. So this is 0 by root over 49 root 157. So this is equals to 0. अब cos 0 कब होता है? Cos theta equals to pi by 2, that is 90 degree. So option D. The greatest rate of increase of u equal to x y z square at the point 1, 0, 3 is options are 9, 3, minus 9 and 0. तो here u equals to एक्स वाई जेड स्क्वायर। यहाँ पे हम ग्रेडियंट ऑफ यू लेते हैं। तो ग्रेडियंट को हम डिनोट करते हैं नेबला से। सो नेबला ऑफ यू दैट इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड इंटू के कैप। तो आप ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज का जो प्रॉब्लम है वो नेरिस्ट के क्वेश्चन पेपर में रिपीट करते रहते हैं। तो उसके लिए आपको नेबला ऑफ यू दैट इज ग्रेडियंट याद रखना है। तो दैट इज गिवन बाय डेल यू बाय डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल यू बाय डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल यू बाय डेल जेड इंटू के कैप। अभी हम पता है डेल यू बाय डेल एक्स का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कीपिंग यहाँ पे y और z स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा। तो इफ वी डिफ्रेंशिएट इट तो हमें मिलेगा वाई जेड स्क्वायर आई कैप प्लस इफ वी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो एक्स जेड स्क्वायर ये कांस्टेंट हो जाएंगे और डेल डेल वाई इज 1 जे कैप प्लस फिर से हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे डेल यू बाई डेल जेड है तो एक्स वाई और इफ वी डिफ्रेंशिएट डेल डेल जेड ऑफ जेड स्क्वायर तो हमें मिलता है 2z इंटू के कैप। तो ये हो गया वाई जेड स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 2xyz के कैप। निकालना है ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज एट द पॉइंट 1, 0 एंड 3। दैट मीन्स x का वैल्यू है 1, y है 0 एंड z है 3। सो नेबला ऑफ u इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये 0 होगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो अभी हमें दिया गया है x का वैल्यू एज 1 और z का एज 3, तो 3 स्क्वायर इंटू जे कैप। तो दिस इज इक्वल्स टू 9 जे कैप। अभी हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9 इंटू जे कैप, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, दैट इज magnitude of unit vector is 1, so this is equals to 9, so option A.
आशा करती हूँ आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितनों ने 2019 नेरिस्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, क्योंकि 2024 के क्वेश्चंस 2019 के क्वेश्चन से बहुत मिलते हैं, और या फिर सारे कॉमन ही कह सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।